السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب حضرات، دیکھیے ان لوگوں میں کس کس طرح کے ذہن والے لوگ ہوتے ہیں، کیسے کیسے لوگ ان لوگوں میں پلتے ہیں، کس کس طرح کا یہ لوگوں کو ذہن دیتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں ہر کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان کہتا ہوں، حالانکہ یہ مجھ سے لڑنے آیا تھا، اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ نور حسن ہر دیوبندی سے اس کے منہ کا لگایا ہوا فتویٰ، اس کے زبان سے نکلا ہوا فتویٰ اسی کے گل میں فٹ کرتا ہے۔ خیر، اس کو زین العابدین ایک دیوبندر ہے، اس نے میرا نمبر اس کو دیا اور یہ بہت بڑا اسکالر بن کے آیا ہے، بہت بڑا PhD کیا ہوا بن کے آیا ہے، بہت قرآن و حدیث کا فالوور بن کے آیا ہے۔ خیر، آپ حضرات اس کی پوری گفتگو سنیں اور اس کے دیوانے پن کا جو ہے عالم دیکھ لیں کہ یہ کتنا بڑا پاگل ہے، کتنا بڑا دیوانہ ہے، اور یہ پھر لاسٹ میں جا کے جو ہے نا بدتمیزی پر آ گیا۔ یہ شخص شروع سے ہی بدتمیزی کر رہا تھا۔ میں نے اس کو بولا کہ تو پیار محبت سے بات کر، ورنہ تو مجھے جانتا نہیں ہے ابھی، میں بھی جو ہے بدتمیزی میں PhD کیا ہوا ہوں۔ حالانکہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا پاورفل مان رہا تھا علم کے دائرے میں، کہ میں بہت بڑا جو ہے جانکار ہوں، بہت بڑا علم والا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، بہت بڑی بڑی باتیں پھینک رہا تھا، مگر میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تو اتنی بڑی بڑی باتیں نہ پھینک۔ بولا تھا میری 70-75 سال عمر ہے، اتنی ہے اتنی ہے۔ میں نے کہا تو 70 نہیں تو 500 سال کا بھی ہوتا الحمدللہ تو نور حسن کے سامنے آ کے دھولی چاٹتا، کیونکہ ہر گستاخ رسول کو الحمدللہ نور حسن کا کام ہے دھول چٹوانا۔ خیر، آپ حضرات اس پوری گفتگو کو دھیان سے سنیں اور اس پر غور و فکر کریں، اور سن کر جو ہے کمنٹ میں آپ اپنا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ بھائی السلام علیکم۔ جی آپ کا نام؟ بہت بدتمیز آدمی ہے یہ۔ کال کٹ کر دیجئے جناب، جی میں کسی کام میں ہوں، کال کٹ کر دیں۔ ہیلو ہیلو ہاں بولیے بولیے۔ بھائی میں ڈاکٹر کمال احمد بول رہا ہوں بنگلور سے۔ بنگلور سے؟ نمبر آ رہا ہوگا نا، میں بنگلور سے ڈاکٹر کمال احمد بول رہا ہوں۔ اچھا، آپ کا مسلک؟ اور دیکھیے ہیں آپ کا مسلک؟ میں نا دیکھیے باخدا کہہ رہا ہوں، میں اپنے ایمان و یقین کی بات سے میں اپنے بال بچوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نہ دیوبندی ہوں، نہ وہابی ہوں، نہ بریلی ہوں، نہ تبلیغی جماعت کا ہوں، میں مسلک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اچھا، میں اپنے ایمان و یقین کی بات میں کر کے کہا، دنیا کے سارے مسلمانوں کی میں عزت کرتا ہوں۔ اچھا، میں دنیا کے سارے مکتبہ فکر جو اسلامی مکتبہ فکر کے جو مومن ہیں، میں سب کی عزت کرتا ہوں۔ اچھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اس حدیث پر عمل کرتا ہوں۔ شیعوں کی بھی؟ کہ ہر مسلمان کی عزت کرنا، اگر تم مومن کی عزت نہیں کرو گے تم پکے مومن نہیں ہو سکتے، حدیث پڑھے ہو نا۔ ہاں، شیعوں کی بھی قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں؟ ہر مومن کی، جو دنیا میں ہر مومن جو بھی تو شیعہ مومن ہے؟ مکہ سنو، جو بھی حرم شریف کی زیارت نصیب ہوتی ہے، جو حرمین شریفین میں جن کو قدم رکھنے کی اجازت ہے، بالاتفاق وہ مومن ہے، ٹھیک ہے۔ جو عالم اسلام میں بالاتفاق جس کو مسلم تسلیم کیا جاتا ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں۔ قادیانی بھی مومن ہے؟ معلوم نہیں تم کو؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں تم کو معلوم نہیں کہ قادیانی مومن ہے یا نہیں؟ اچھا، کس کے پکش میں آئے ہو؟ مجھ سے یہ بولو پہلے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں سنو میری بات،
देखिए मेरी बात सुनो। हर इंसान की हैसियत छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है, दरमियान की भी होती है। मैं डॉक्टर कमाल अहमद हूँ, मैं अपना फोटो भेजता हूँ, देख लो। मैं क्यों देखूं तुम्हारा फोटो? जी? दबंग हो गया तुम कहीं के? अरे दबंग किसको कहते हैं बे? दबंग तो लुच्चे होते हैं, लफंगे होते हैं। तो फिर फोटो क्यों भेज रहे हो? किस नहीं, लिए? तुम्हारा चेहरा देख के डराने के लिए? अरे मुंह दोगे, पेशाब कर दोगे। तेरे जैसे कितने आते हैं कितने जाते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम चला लोगे मकतब, दुकान चला लोगे दूसरे दिन? काय का मकतब? अरे दुकान चला लोगे, जो दुकान तुम चला रहे हो चला लोगे? तू जो अपना मकतब चला रहा है ना, वो अरे तू अपना मैं मकतब मकतब चला। दुकान तू नहीं सिर्फ चलाता। डॉक्टर सुन, मैं तू सिर्फ डॉक्टर लोगों का डॉक्टर हो इलाज सकता है। अरे मैं इलाज की डॉक्टर नहीं हूँ। किस चीज का डॉक्टर है? चल बता। मैंने कुरान की? कुरान पे पीएचडी की है। तूने कुरान की पीएचडी की है? जाहिल। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? अरे गूगल में देखो, दुनिया तू बता ना, गूगल के मुकल्लिद तू बता। जामिया अजहर मिस्र यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की है। जामिया अजहर यूनिवर्सिटी से तूने पीएचडी की है? जामिया अजहर यूनिवर्सिटी से मेरे पास कॉल आ चुका है कमीन। हाँ क्या? और उन्होंने बोला है कि बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो माशाल्लाह, और जो तुम्हारी गिरफ्त है वाकई काबिल तारीफ है। तो बहुत जबरदस्त गिरफ्त है आपकी। ठीक है, मुसलमानों को गाली देते सुन, तूने कादियानियों को मुसलमान कहा, मैं कादियानियों को खुला काफिर कहता हूँ। और जिनका मैं सुन, किस गधे ने कहा? जिन देवबंदरों का चुप बे, अरे बेवकूफ, चुप। हिम्मत है, हैसियत है तो बात कर। हाँ हिम्मत है, चुप। अब खामोशी से मेरी बात को समझिए इस तरह। अरे किस गधे ने कहा कादियानी मुसलमान है? किस गधे ने? तूने कहा ना कि जो भी मुसलमान है मैं उनकी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ। मैंने कहा शियाओं की भी और कादियानियों की भी। तूने कहा हाँ, जो भी कलमा पढ़ने वाले हैं, जिनको भी जो है मक्का शरीफ में जाने। चुप बदतमीज। जो पागल कहीं के, हरमैन शरीफैन की जियारत जिसको नसीब है, तो कादियानी नहीं जाते क्या वहाँ? तुम मालूम है अरेस्ट किया, मैंने अरेस्ट करवाया था, मालूम है मक्के? नहीं जाते क्या वहाँ? शिया नहीं जाते क्या वहाँ? चकड़ालवी नहीं जाते क्या वहाँ? अहले खबीस नहीं जाते क्या वहाँ? देवबंदी नहीं जाते क्या वहाँ? बरेलवी नहीं जाते क्या वहाँ? सुन बे, अब मैं तुझे एक ही बार में समझा दूं और शॉर्टकट में समझा दूं। सुन अब। अरे साले बे कहने कैसे? पागल कहीं के, चुप। अरे साले अब सुन, अगर तू पीएचडी किया हुआ है, अगर तू डॉक्टर, मुंह में तुम्हारे मुंह दूंगा, मुंह में रिकॉर्डिंग करो। होश में रह के बोल, होश में। कमाल अहमद बेंगलोर से बोल रहा हूँ, बदतमीजी करोगे मैं तुम्हारे। अच्छा, ये तेरा ओरिजिनल नंबर है? तुम्हारे दरवाजे में आके मुंह दूंगा। आजा, मैं बुला रहा हूँ, आजा। बदतमीजी मत करना। अबे कमीन, बदतमीजी तूने की है? नूर हसन बदतमीजी नहीं करता। और तूने शुरू में ही कहा कि बड़ा जाहिल लगता है। सुन बे, अरे अबे का लफ्ज तुमने कहा पहले। शुरू में तूने कहा कि बड़ा जाहिल लगता है। बदतमीजी किसने की? क्या हमने कहा जाहिल लगता है? अरे तूने क्या अल्फाज इस्तेमाल किया था? अब सुनो, तूने अल्फाज का इस्तेमाल किया था? करोगे? सुनो, तुम्हारे बदतमीजी का जवाब दे दिया। अब जो है सुनो, अदब के दायरे में रह के बात कर। जिस तरह सामने वाला बात करता है मैं उसी तरह से बात करता हूँ, ठीक है? मैंने कहा सुनो, ठीक है बेटा, तुम छोटे हो। ये बेटा बेटा मत कर मुझे, मैं तेरे जैसे बदतमीज का बेटा नहीं हो सकता। अरे मेरी उम्र 15 साल है। सुन, मैं किसी बदमजहब बेटा का बेटा नहीं हूँ। मेरे बाप मोमिन है, समझा? बदबख्त, मेरे बाप मोमिन है, मैं मोमिन का बेटा हूँ। तो फिर भी समझा? मैं भी मोमिन हूँ, क्या? चुप। घेरगट के तरह कलर बदल लिया है। फिर चुप करे, मैं भी मोमिन हूँ। खामोशी से रह के या तो फोन काट दे, क्यों बात नहीं, या फिर मेरी बात को सुन। शॉर्टकट में मैं तुझे समझा देता हूँ। अगर मोमिन होगा, मुसलमान होगा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करेगा। हुजूर की हदीस को मानता है? बिल्कुल अमल करता हूँ, बिल्कुल। अगर कोई भी हदीस के खिलाफ अमल है मेरा तो आज साबित कर दो। मैं चल ठीक है, अच्छा ठीक है, एक मिनट। देखिए, जैसे आपने कहा कि मैं हर कलमा गो को मुसलमान मानता हूँ, और हर कलमा गो नहीं, मैंने वो नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा हर वो मोमिन जिनको आलम इस्लाम मोमिन तस्लीम करता है, हरमैन शरीफैन की जियारत नसीब होती है। अच्छा ये बताइए, इत्तेफाक आलम इस्लाम जिसको मोमिन तस्लीम करता है। अब थोड़ी सी पहचान करा के मुझे बता दीजिए कि आप किस को मुसलमान मानते हैं?
हैं? और आपकी कैटेगरी किन लोगों में है? मैं उनको मुसलमान कहता हूँ जो आलम इस्लाम। फिर वही बात, ये बकवास करना बंद करो, पहचान बताओ मुझे। है पहचान बताओ, पहचान। पहचान मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ जो आलम इस्लाम। गिरगट की तरह गोल गोल मत घूम, तूने पीएचडी की होगी वाकई, मगर लोगों को गुमराह करने के लिए की होगी, ठीक है ना कि आलम इस्लाम बिल इत्तेफाक जिसको मोमिन तस्लीम। अच्छा एक मिनट, जिसको जियारत नसीब होती है, एक मिनट, वो मोमिन है। अच्छा एक मिनट, देखिए और कोई कमरे में अरे पागलपन के दौरे पड़ने लगे क्या अभी से? क्या दौरे पड़ने लगे क्या अभी से पागलपन के? बौखलाए जा रहे हो। 25 साल खामोशी से रहकर सुनो, बुजुर्ग लग रहे हो, बुर्दवारी नाम की कोई चीज नहीं तुम्हारे अंदर। देखो बेटा सुनो मेरी बात। बेटा मत कर, बेटा करना बंद कर, चुप। अरे चुप, बदतमीज। 75 साल की उम्र है लेकिन अबे साले कमीन, तेरी जितने की उम्र है जूते की नोक पर है तू साले कमीन। 25 साल से ज्यादा दिमाग स्ट्रॉन्ग है मेरा, 25 साल से ज्यादा। तू पागल हो गया, भूसा भरा है तेरे दिमाग में, समझा? क्या भूसा भरा है? पहले तो मेरी बात को सुन अब यहाँ। हाँ बोलो। तू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मानता है ना? बिल्कुल। अच्छा, तू देवबंदियों को भी मुसलमान मानता है, अहले हदीसों को भी मुसलमान मानता है, बरेलवियों को भी मुसलमान मानता है। जो बिल्कुल खामोशी से जो मैं समझा रहा हूँ उसको सुन करता है। ए कॉल काट के चला जा, वरना जितनी देर तू मुझसे बात करेगा उतनी देर जो है तुझे जलील करूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, और तेरे मुंह से कुफ्र उगलवाऊंगा इंशाअल्लाह। हैसियत है तुम्हारी, हैसियत है, वही हैसियत है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी हैसियत रख, तेरे मुंह से कहलवाऊंगा, तू मुझसे बात करके दिखा अदब और एहसान के दायरे में। बात करने की हैसियत रखो, फोन नहीं करना बेटा। फोन काटोगे साले काफिर हो, मुशरिक हो, बिदअती हो। अभी तो तूने मेरे ऊपर काफिर मुशरिक बिदअती का फतवा लगा दिया बे साले जाहिल। फोन काटोगे तो फोन काटने से कोई, एक मिनट हराम के पिल्ले, एक मिनट ओ नज्म की नाजायज औलाद, कोई फोन काटने से काफिर मुशरिक बन जाता है क्या? नहीं, कौन सी कुरान की आयत में लिखा है कि फोन काटने से काफिर मुशरिक बन जाता है? अरे इस्लाम फतवा हो रही है, तुम फोन तूने फतवा जो लगाया है कि फोन काट दोगे तो काफिर मुशरिक हो गए। चल कौन सी हदीस है, कौन सी कुरान की आयत है, चल साबित कर कमीने। इस्लाम पर बात हो रही है, तुम तेरे जैसे शैतानों से बात करना मेरी फितरत नहीं, मेरी आदत नहीं, हराम के पिल्ले। हाँ तो बात कर साले, बात कर। आज तुम्हारी हैसियत देखता तो मेरी बात तो सुन ले हरामी, मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है शैतान? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरी 75 साल की। अबे कमीन कहीं के सुअर, फिर वही कहिए कि 75 बे साले, अगर तू 500 साल का भी होता ना तो मुझसे बात करने के काबिल नहीं है। चलो बात करो, चलो। फोन नहीं काटना बेटा फोन काटेगा साले इसका मतलब नहीं है, फोन मत करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 73 जमातें होंगी, 73 तबके होंगे, उनमें से सिर्फ एक ही जमात हक पर होगी। साहबा इकराम ने पूछा या रसूलुल्लाह, इबारत पढ़ दो जो 73 फिरके होंगे, उस जमात की पहचान क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरे वो हदीस की इबारत पढ़ दो। चुप ना। अच्छा ये हदीस है कि नहीं? हदीस। अगर मैं इबारत, एक मिनट, पहली बात तो मैं मोबाइल में कुछ कर रहा था, कुछ बना रहा था और तूने ऊपर से कॉल कर दिया, ठीक है? वो हदीस मुझे देख के याद है, बगैर देखे याद नहीं। अगर मुझे बगैर देखे याद नहीं तो क्या मुझे उसका मफहूम सुनाने की इजाजत नहीं? नहीं ठीक है, नहीं सुनाने की। अगर तू इतना बड़ा पीएचडी किया हुआ है, इतना बड़ा स्कॉलर है, चलो, तो मुझे बगैर मतलब उसका मफहूम बयान करने की इजाजत नहीं है? इजाजत है। अच्छा, लेकिन ये पूछ लिया। चुपिए की इबारत, हाँ हदीस की इबारत इसी। अरे जनाब, तुमने तस्लीम, ओ डॉक्टर साहब, अरे तस्लीम कर दिया यार। अरे पीएचडी सुनिए ना, चलो। अहले ईमान से बड़े बड़े पीएचडी आके ना उसके सामने जब बात करते हैं तो धूली चाटते हुए नजर आते हैं। और इंशाअल्लाह तुम्हारी हैसियत, चलिए चलो ना बेटा, आज तुम्हारी हैसियत देखता हूँ। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग कर लो इसको। मेरे सहाबा ने डॉक्टर कमाल है। तू चुपेगा कब? ये तो बता, मेरी बात कब सुनेगा? पागल कहीं के, कब सुनेगा तू? अरे बेंगलोर में कहाँ रहता हूँ, सुन लो जरा सा। अबे तू मुझे मत सुना कि तू बेंगलोर में कहाँ रहता है। हाँ समझा? तू अकेले ही बेंगलोर में नहीं है पैसे वाला, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी बहुत सारे जानने वाले हैं बेंगलोर में। ये बकवास करना बंद कर, कहे तो मैं भी भेजूं आधे घंटे में। अरे आधे घंटे में भेजूं, आधे घंटे में भेजूं, आधे घंटे में वही भेजूं।
भारत या सिटी निको होम में मेरा जो टावर, अरे मैं कह रहा हूँ तो मोदी के बिल्कुल नीचे है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ तो मोदी के बिल्कुल नीचे है, तू मोदी का जो है राइट हैंड है, तो ये मुझे नाम निशानी मत बता के इतना और उतना, ठीक है, मैं कह रहा हूँ तो दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह इंसान है, तो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान है, मगर तू मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, बात नहीं कर पाएगा, ठीक है, चुप। अब बात को सुन मेरी, चल बात कर, हदीस की बात कर, चल। मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया चलो कि जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्श कदम पर होंगे वही जन्नती हैं। मेरे सहाबा का अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने गैब का इल्म अता किया। वहाबी देवबंदी का अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल नहीं। वहाबी देवबंदी, चुप चुप चुप, झूठ मत बोलेगा, झूठ मत बोलेगा। कौन सा देवबंदी आलिम ने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं मालूम? बताओ। उठाओ किताब तक़वियतुल ईमान, ए बेटा, एक इंच भाग, उठाओ किताब तक़वियतुल ईमान, उठाओ फतावा रशीदिया, देवबंदी आलिम ने मौलवी इस्माइल दहलवी, मौलवी रशीद अहमद गंगोही, मौलवी रशीद अहमद गंगोही, मौलवी इस्माइल दहलवी, हाँ, इन लोगों ने अपनी किताबों में माज़अल्लाह मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की तौहीन की और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार किया। अशरफ थानवी ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब की तौहीन की और तौहीन का, चुप ना, उलमाए देवबंद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब का इनकार नहीं किया। बेवकूफ, झूठ बोल के निकल जाएगा बे मुझसे। तू तो क्या, तेरे बड़े बड़े शैतान और भी अगर दो चार आ जाए ना, उनको भी धूल चटाऊंगा इंशाल्लाह। अगर तू सच्चा है, अगर तूने वाकई पीएचडी की है, सुन बे, अगर वाकई तूने पीएचडी की है, अगर वाकई तूने जो है कुरान और हदीस की और किताबों की पीएचडी की है, अबे सुन, अदब से बात करो, तहजीब से बात करो। तेरे अंदर जब अदब है ही नहीं तो मैं क्या अदब से बात करूं? नहीं, सामने वाला जैसा होता है मैं वैसे ही बात करता हूं, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। हाँ तो ठीक है, तहजीब से बात कर मुझसे, तहजीब से। तो तू भी तहजीब से बात कर, तू मुझे इला बिला ना समझ, तू मुझे छोटा मोटा ना समझ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने नबी का गुलाम हूँ, मैं भी अपने नबी का नौकर हूँ, और नबी के नौकर से बड़ी हैसियत किसी शैतान की नहीं होती, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, तो तुमने कहा कि देवबंदी आलिम को ये अकीदा है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म गैब का इनकार करते हैं। हाँ चुप, अब उठा फतावा रशीदिया। हाँ, वो लिखता है कि अल्लाह के अलावा किसी और के लिए किसी भी सूरत में किसी भी तावील से इल्म गैब साबित करना, इल्म गैब तस्लीम करना, ये सारी शिर्क है। हाँ, क्या हुजूर के लिए इल्म गैब का अकीदा रखने वाला मुशरिक है? क्या हुजूर के लिए इल्म गैब का अकीदा रखना शिर्क है? देखो इल्म गैब, देखो दिखाओ, बिल्कुल कुछ नहीं, फतावा रशीदी का हवाला दिया है। अभी तो इल्म गैब का सुनो, इल्म गैब का इनकार कोई भी आलिम, कोई भी किसी भी मसलक का आलिम नहीं करता। अलबत्ता अच्छा एक मिनट, हाँ, तुझे मेरा नंबर किसने दिया पहले ये बता? है? मेरा नंबर किसने दिया है? मैंने यूट्यूब में एक नंबर था, उस नंबर को डायल किया और मैंने कहा कि नूर हसन का नंबर दो। अच्छा ठीक है, वो किसका नंबर था? किसका नंबर लगाया तुमने यूट्यूब में? है? किसका नंबर लगाया था? कौन था वो? नहीं, रात में मैं यूट्यूब में, रात में दिखा नहीं है? रात में दिखा नहीं? नहीं, मैं यूट्यूब में बात तुम्हारी हुई तो उससे नाम नहीं पूछा? हाँ, नाम पूछा कि नहीं पूछा? यूट्यूब में जी, यूट्यूब में एक साहब का नंबर मिला, मैंने कहा नूर हसन का नंबर दे, उसने लिया। तो मेरा नंबर नहीं देखा तुम्हें यूट्यूब में? है ये नंबर, मेरा एड्रेस पूरा पड़ा हुआ है यूट्यूब में जनाब। पीएचडी किए हुए खाक देखा है तुमने यूट्यूब में कुछ? अच्छा चलो ना भाई, चलो, हाँ बात करो। तुम्हें नंबर दिया किसने है वो बताओ पहले। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात। पहले नंबर दिया किसने है वो बताओ। है? नंबर दिया किसने है मेरा वो बताओ। नहीं, वो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ किस नंबर से डाल किया। डरो, छुपाने की बात नहीं, डरो, किस नंबर से डाल किया बता रहा हूँ। हाँ बताइए। हाँ, हमने 6396401985, एक मिनट, जो 1985 है। एक मिनट, उस नंबर से डायल किया था, वो बंदे ने दिया तुम्हारा नंबर। अच्छा एक मिनट। हाँ अब बोलिए, क्या नंबर बोले? क्या नंबर बोले थे? 63964019। एक मिनट, धीरे जरा, धीरे। 6396। उसके बाद क्या बोले? 96 के बाद नहीं, 96 नहीं, शुरू में 63। हाँ, उसके बाद 63 के बाद 96 जी, 96 के बाद 40।
ٹھیک ہے اور اچھا زین العابدین شیطان نے تمہیں جو ہے میرا نمبر دیا ہے. اس کا نام معلوم نہیں, اس کا نام معلوم مجھے سب معلوم ہے الحمدللہ. دنیا میں کوئی شیطان بچا نہیں جو میرے پاس کال نہیں کرتا ہے. خیر میرا کہنا یہ ہے, سنو چپیے آپ. جو میں نے حدیث آپ کو بتائی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, ان میں صرف ایک فرقہ, ایک جماعت, ایک طبقہ ہی حق پر ہوگا, باقی جہنم, باقی سب کے سب 72 کے 72 جہنمی ہوں گے. اس پر آپ کا ایمان ہے یا نہیں, بس یہ بتائیے آپ پہلے. بالکل ایمان ہے, بالکل. تو پھر آپ نے کہا کہ جتنے کلمہ گو ہیں, جتنے بھی اہل ایمان ہیں, یعنی جن کی کیٹیگری مسلمانوں میں آتی ہے, یعنی وہابی دیوبندی, ٹھیک ہے, میں نام لے کے کہتا ہوں, میں بیچ والی بات نہیں کرنا پسند کرتا. تو تم وہابی دیوبندی کو مسلمان مانتے ہو؟ ایک چیز کا جواب دو. میں کچھ کا بھی جواب نہیں دوں گا, پہلے میرا مسئلہ حل کرو. ہاں کیا بولو. تم بہت بڑے اسکالر ہو, بہت بڑے پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہو, بہت بڑے ڈاکٹر ہو تم, پی ایچ ڈی کے. میری بات, میں وعدہ کچھ بھی نہیں سننا ہے, کچھ بھی نہیں سننا ہے, پہلے میرا مسئلہ حل کرو. کرتا ہوں کہ میں فون نہیں کاٹوں گا. ارے یار فون کاٹو مت کاٹو, اگر ادب سے بات کرو گے تو بات کرو, ادب سے بات کرو گے تو صبح سے میں تمہارے ہر سال کر رہی ہے نا بدتمیزی, جواب دوں گا. ٹھیک ہے چلو بولو. ادب سے بات کرے گا تو صبح سے شام تک. ہاں بالکل ادب. اور بے ادبی کرے گا تو 1 منٹ میں تیرا کال کٹ کر دوں گا, اور تو بار بار کال کرے گا, پریشان کرے گا, مجھے معلوم ہے نا. خیر, اس حدیث پر تمہارا عمل ہے کہ نہیں؟ بالکل عمل ہے. جب تمہارا عمل ہے تو پھر سارے طبقے والے, سارے فرقے والے, ساری جماعتوں والے حق پر ہو کیسے جائیں گے؟ اب یہ بتاؤ. اب یہ بتاؤ کچھ نہیں, تم سے جواب چاہیے مجھے. میں نے جواب دیا نا کہ کہاں دیا نا کہ اس حدیث پر مجھے ایمان ہے. تمہارا اس حدیث پر ایمان ہوتا تو تم یہ کیوں کہتے کہ سارے لوگ جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ مسلمان ہیں؟ میں نے وہ نہیں کہا. پھر وہی بات, میں نے وہ نہیں کہا. ایک منٹ میں شارٹ کٹ میں بتا دوں. ڈاکٹر صاحب, عالم اسلام میں نے کہا, عالم اسلام میں دیوبندی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سن میرا جملہ, وہ آ کے بات کرے گا. میں نے کہا عالم اسلام بالاتفاق جس کو مسلمان تسلیم کرتا ہے, اور حرمین شریفین کی زیارت جن کو نصیب ہے, وہ سب کو میں مومن تسلیم کرتا ہوں. نوٹ کر کیا کہا. عالم تیرے جملوں پہ اتفاق جن کو مسلمان تسلیم کرتا ہے, اور حرمین شریفین کی زیارت جس کو نصیب ہے, ان سب کو میں مسلمان تسلیم کرتا ہوں. ہو گئی تیری بات. ہاں بولو. وہابی دیوبندی حج کے لیے جاتے ہیں یا نہیں؟ معلوم نہیں. تم لوگ تو مکہ اور سیدھا جواب دو, سیدھا, ورنہ بہت برا ذلیل کروں گا. سیدھا جواب دو, جو میں نے پوچھا اسی کا جواب دو. ہاں بولو. کیا دیوبندیوں کی اور وہابیوں کی گنتی مسلمانوں میں آتی ہے یا نہیں, اور یہ حج کرنے جاتے ہیں یا نہیں؟ بھائی تو ہم اور تم دیکھو, ہم اور تم انفرادی تو پھر وہی بات جو میں نے پوچھا. ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی کیا ہوا تو ہے, پر تیرے جیسے پی ایچ ڈی کے بنا دھول چاٹتے نور حسن کے سامنے, ٹھیک ہے. ارے عالم اسلام نے بالاتفاق جس کو مسلمان تسلیم کیا. ابے پاگل, تو دیوبندیوں کو بیٹا. او ڈاکٹر, ہاں تو دیوبندیوں کو مسلمان مانتا ہے یا نہیں, یہ بول. اب یہ بتاؤ کہ عالم پھر وہی بات, دیوبندی کو مسلمان تسلیم کرتا ہے یا نہیں. عالم اسلام تو تجھ سے ہی پوچھ رہا ہوں. عالم اسلام تو خود کلیئر ہو جائے گا. خود عالم اسلام تم کو معلوم نہیں. عالم اسلام کس کو خود عالم اسلام سنو, عالم اسلام کس کو مسلمان تسلیم کرتا ہے, تم کو معلوم نہیں. یار پاگل ہو گیا تم لوگ ہیں. پاگل کس کو کہتے ہیں پاگل کس کو یہ شاید تمہارا منہ. بدتمیزی کرو گے تمہارے گھر میں آ کے منہ میں دوں گا. آگے بدتمیزی کرو گے تمہارے گھر میں آ کر کے منہ دوں گا. تیری ماں نے دودھ نہیں پلایا, میرے گھر کا ایڈریس لے. حرام کے پیچھے میں تمہارے میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے؟ حرامی, زنا کی پیداوار, میں نے کون سی بدتمیزی کی ہے؟ سالے شیطان. گالی مجھ سے زیادہ بکتا ہے. نہیں, میں نے کون سی, میں تجھ سے ادب احترام سے بات کر رہا ہوں سالے کمینے, مگر تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے. تمہاری ماں نے جنا کر کے تم کو پیدا نہیں کیا. مجھے یہ بتا کہ تو دیوبندی وہابیوں کو مسلمان مانتا ہے یا نہیں مانتا, بس اس کا جواب دے. میں تیرے منہ سے ثابت کرواؤں گا یہ کافر ہیں, کافر ہیں, کافر ہیں.
तुम्हारी माँ ने तुमको हलाल तरीके से पैदा किया होगा। देख लो मुसलमानों, लेकिन ये साला शैतान अपने आप को डॉक्टर बता रहा है, पीएचडी किया हुआ बता रहा है, कुरान और हदीस का जो है बहुत बड़ा स्कॉलर बता रहा है। गाली बकेगा, गाली बकेगा, गाली का गाली खाएगा, सब एक गाली का 70 गाली दूंगा। ये जो है ना रिकॉर्ड हो रहा है और ये सोशल मीडिया पे जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है, और तेरे नंबर के साथ जाएगा। ये तेरा नंबर, ये तेरा नोट कर लो। अरे चल अच्छा बता बैठ रहा है। मेरा नाम डॉक्टर कमाल अहमद है और मैं सुनो एशिया का सबसे बड़ा सोसाइटी बन रहा है बेंगलोर में। एशिया का सबसे बड़ा सोसाइटी, वो सोसाइटी का नाम है भारतीय सिटी निको होम्स। अच्छा, ठीक है, मैं उसका सदर है भारतीय सिटी निको होम टावर नंबर 5 में रहता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर कमाल अहमद। नोट करो, यूट्यूब में डालो, किसी को डालो। फेमस होना चाहता है क्या? फेमस? फिर बेवकूफ कहीं का, तुम्हारे गधे से फेमस होना है बे? तुम्हारे सुअर कुत्ते के मजाज वाले इंसान से फेमस होना है? इतने तेरे ऊपर पागलपन के दौरे क्यों पड़े हुए? क्यों बदतमीजी कर रहा है तू? बदतमीजी करेगा, क्यों बदतमीजी? तो गाली खाएगा, बदतमीजी करेगा गाली खाएगा। मैं किसी शैतान से डरता नहीं हूँ, ठीक है? जिस तरह सामने वाला बदतमीजी करता है उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बोलने आता है। मेरी उम्र 50 फिर वही बात, 100 साल, मेरा मेमोरी 25 साल नौजवान जैसा है। अबे कमीने, अगर 100 साल की भी तेरी उम्र होती या 500 साल की भी उम्र होती तो मुझे तेरी उम्र से कोई लेना देना नहीं है। तेरे जैसे 36 आगे धूल चाटते हैं यहाँ। कमीना किसको कहा? अरे तेरे जैसे कमीना किसको कहा? तेरे जैसे 36 यहाँ आके धूल चाटते हैं, ठीक है? तू अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर जो बन रहा है ना, मोमिन के आगे किसी के चलते नहीं है। अरे सुअर हरामी कमीना किसको तुमने कहा? देख रहे हैं मुसलमानों, ये साला कहाँ से आ गया उठ के? ये ईसाई लग रहा है, ईसाई। किसको कहा? ईसाई तो नहीं है तू? चलो, अरे ईसाई तो नहीं है तू? चलो तहजीब से बात कर। तो मैंने तुझसे ये पूछा, फोन मत करना। चलो, मैंने तुझसे ये पूछा, हाँ बोलो, कि देवबंदियों को तू मुसलमान मानता है या काफिर मानता है, और बरेलवियों को तू मुसलमान मानता है या काफिर मानता है? जिसको मुसलमान तस्लीम करता है उसको मुसलमान तस्लीम करता हूँ। तू पागल है क्या है? और जिस इंसान को हरमैन शरीफैन की जियारत नसीब है सब मुसलमान है। और तुम्हारे कहने से और किसी कुत्ते के कहने से कोई काफिर नहीं होता है। माज़ल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 72 के 72 को जहन्नम ही बताया। हाँ, तो जहन्नम में काफिर मुशरिक जाएंगे कि कोई ईमान वाला जाएगा? सुन बे, मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह। तेरे मुंह से तुझसे साबित करवाऊंगा, मैं थोड़ी करूंगा, तू बोलेगा। चलो बात करो, चलो। तू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पक्का गुलाम है कि नहीं है? बिल्कुल, मैं सच्चा आशिक हूँ, आशिक रसूल। अच्छा, तो जो आशिक होता है वो अपने चाहने वाले की तारीफ करता है कि तौहीन करता है? जी, जो किसी से इश्क करता है, किसी से मोहब्बत करता है, किसी को चाहने वाला होता है, तो जिसको चाहता है बंदा उसकी मोहब्बत किसको चाहेगा? मिसाल के तौर पे तू हुजूर को चाहता है कि नहीं? तू हुजूर से मोहब्बत करता है कि नहीं? अरे मैं आशिक रसूल मोहम्मद। ठीक है। तो तू हुजूर की तारीफ करेगा या तौहीन? बिल्कुल तारीफ करेंगे। तौहीन करने वाला मरदूद काफिर है। काफिर है? हाँ, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करेगा वो मरदूद काफिर है। अच्छा, अल्लाह अकबर। बस अभी यहाँ पर इतना और बता दीजिए कि तुम जो है देवबंदी और बरेलवी दोनों को मुसलमान मानते हो या इनमें से किसी एक को मुसलमान मानते हो? क्योंकि ये दोनों अलग अलग जमातें हैं, अलग अलग तबके हैं, अलग अलग जो है ग्यों हैं। अब ये बताओ कि देवबंदी और वहाबी, सुनो, वहाबी, देवबंदी, तबलीगी जमात, जो भी जिसको तुम काफिर तस्लीम करते हो, काफिर तस्लीम करते हो ना? तुम काफिर तस्लीम करते हो? तुमसे कहलवाऊंगा, टेंशन मत। नहीं, तुमसे मैं पहले तुम उगलोगे। जो देवबंदी मसलक है और वहाबी मसलक में सल्फी मसलक आते हैं, अहले हदीस मसलक आते हैं, और उसका देवबंदी मसलक तो उलमाए देवबंद तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तुम बताओ, इन सब को तुम काफिर समझते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं देवबंदी को काफिर कहता हूँ, काफिर समझता हूँ, काफिर मानता हूँ। और इनके सुन तो पहले मेरी पूरी बात सुन ले कमीन। तुम कुत्ते हो, पूरी बात सुन लेना। देवबंदी मसलक को अगर देख रहे हैं मुसलमानों, मेरी पूरी बात, कुत्ते हो, मेरी सुअर हो, हरामी हो, रिकॉर्डिंग करो। मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे? पूरी बात सुन लेना।
क्योंकि इन देवबंदियों के 4 अकाबिर बदतरीन काफिर हैं और जो भी इनके कुफ्र पर सुन बे पागल सुअर हरामी गधा, अरे सुअर हरामी गधा, तुम जिसको काफिर कहोगे काफिर हो जाएगा। तेरा थानवी काफिर है, पक्का काफिर है, डिक्लेयर। तुम कहने से काफिर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं साबित करूंगा। अशरफी थानवी साहब तुम कहने से काफिर, सांप है वो, सांप है, आस्तीन का सांप है। अरे सुअर गधा हरामी, तुम काफिर कहने से काफिर हो जाएगा। काफिर है वो, अरे सुअर गधा, मैं साबित करूंगा, कहने से काफिर हो जाएगा। मैं साबित करूंगा। तुम्हारी क्या हैसियत है साबित करने की? अच्छा ये बता सुअर गधा हरामी तुम्हारे साबित करने से काफिर हो जाएगा कोई? काफिर है वो, काफिर हो तो जाएगा, पहले ही से काफिर है। गधा हरामी, अरे गाली मत बक, नूर हसन सुन, गाली मत बक, बदतमीजी मत कर। अरे सुअर गधा हरामी, धूल चाटने लगा, जिसको चाहोगे धूल चाटने लगा, तेरे मुंह से उगलवाऊंगा, टेंशन क्यों लेता है? अभी तूने कहा ना कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करे वो तुम्हारे जैसे अकीदा बदतरीन अकीदा रखने वाले हज में जाते हैं। देख सुन, खाना काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। सुन है वो बदनसीब है वो इंसान। अच्छा सुन बे, सुन हिदायत नसीब कर। सुन बहुत बड़ा PhD किया हुआ ना, बहुत बड़ा स्कॉलर है तू। हाँ बोल। तूने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं आशिक हूँ, मैं आशिक रसूल हूँ। जी बिल्कुल। मैंने तुझसे पूछा कि जो आशिक रसूल होता है वो हुजूर की शान में तौहीन करता है या कि उनसे मोहब्बत करता है, उनकी तारीफ करता है? तो तूने कहा तारीफ करता है, तौहीन नहीं करता। जो तौहीन करेगा वो काफिर है। हाँ, किसी अच्छा ये बता, सुन की तौहीन नहीं की। अच्छा सुन ना, किसी देवबंदी आलिम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे कहने से हो जाएगा, तेरे कहने से हो जाएगा। मैं जब साबित कर रहा हूँ तो तू सुन क्यों नहीं रहा? पागलपन के दौरे क्यों पड़ने तेरे ऊपर? उसने तौहीन की, तुम्हारे कहने से हो जाएगा उसने तौहीन की। तू उगलेगा, मेरा काम ही है, तू उगलेगा, तुझसे उगलवाऊंगा, टेंशन क्यों लेता है? हाँ चल, तू उगलेगा। हाँ चलो। ये बता, थानवी का इल्म कुत्ते बिल्ली की तरह है? थानवी का इल्म कुत्ते बिल्ली के इल्म की तरह है? अशरफ अली थानवी एक अकाबिरीन में से आते हैं। तेरे अकाबिर हैं? और रसूल अंबिया में आते हैं। अबे तेरे अकाबिर हैं? और रसूल अंबिया में आते हैं। बेवकूफ गधे, सुअर हरामी, गाली मत बक वरना तेरा जनाजा निकाल के रख देंगे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अल उलमा व रसूल अंबिया की। मुसलमानों जरा इसकी खैर खबर जरूर लेना, शैतान के बढ़ावा तमीजी कर दिया, बात नहीं कर पा रही है। क्या मैं कह रहा हूँ, बेटा फोन काटोगे तो समझ लो कि हैसियत नहीं तुम्हारी बात करने की। डॉक्टर कमाल अहमद, चल खैर वो तो मुसलमान फैसला करेंगे कि किसकी हिम्मत है और किसकी नहीं है। जो सुनेंगे ज्यादा दिन चल। तेरी माँ ने दूध पिलाया तो तू कल को तो आज करा। हमारी दुकान चल, ये दुकान नहीं है। सुन मेरा, मैं तो अपना परिचय दे दिया। मैं अपना मेरा परिचय ले, मेरा ये सोशल मीडिया पे एड्रेस पड़ा हुआ है। मेरा नाम है नूर हसन बरकाती रजवी, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश, बरेली शरीफ के पास से हूँ। मेरा कस्बा काशीपुर आंगा है, मेरा मोहल्ला बेगमपुरी है और मैं सरपंच साहब के घर के पास रहता हूँ। मेरे घर के पास एक टावर खड़ा हुआ है जो कि सलामत प्रधान साहब के घर में है। अरे तुम किसी चीफ मिनिस्टर का दामाद हो। सुनो, कमीन कहीं के, पूरा एड्रेस घर तक का बताया मैंने। का दामाद हो, सुन, तुम किसी चीफ मिनिस्टर का दामाद हो। डॉक्टर कमाल अहमद को धमकी मत देना। अबे कमीन, मैंने तुझे धमकी कौन सी दी बे शैतान? सुनो, हमारा बाथरूम का हैसियत नहीं रखता है तू। सुनो, ओ नज्द की नाजायज औलाद, तू हद से ज्यादा बढ़ रहा है। अरे हमारा बात, ओ हरामी, ज़िना की पैदावार, वैश्य औरत की गलत हरकतों के गलत नतीजे, साले सुअर। अरे हद से ज्यादा बढ़ रहा तू, हरामी, ज़िना की पैदावार, वैश्य औरत की गंदी हरकतों के गंदे नतीजे। साफ करने की हैसियत नहीं रखता है। सुन साले का, देख रहे हो मुसलमानों, इस हरामी की औकात नहीं बात करने की, साला आया बात करने के लिए। तेरे जैसे हरामी आके धूल चाटते हैं नूर हसन के सामने, साले सुअर, ज़िना की पैदावार। तुम मेरा बाथरूम साफ करने की हैसियत नहीं रखता है, साले सुअर। ओ थानवी की टट्टी जाके चाट, साले थानवी की टट्टी चाट जाके, साले तू ही चाट लिया कर ना उसे, क्योंकि तेरे थानवी ने तो कह दिया है कि अगर उंगली में निजासत लग जाए उसको किसी ने 3 बार चाट लिया तो पाक हो जाएगी। साले लेटरिन में जाके खुद ही चाट लिया कर, हरामी के बिल्ले, तुम जिसको काफिर, साले सुअर। अरे सुअर गधा हरामी, तुम जिसको काफिर कहेगा वो काफिर हो जाएगा। मौलाना तेरा थानवी हरामी काफिर। अच्छा सुन, तूने बहुत PhD की है, तूने बहुत जो है क्या नाम है सर्च किया है, बता थानवी का ओरिजिनल बाप का नाम क्या है और 10,000 का नगद इनाम ले।
मैं तुमको थानवी का ओरिजिनल बाप का नाम बता। थानवी हरामी था, थानवी हरामी था, थानवी हरामी था, थानवी हरामी था। थानवी के ओरिजिनल बाप का नाम पता नहीं किसी को, तू बता, मान लो काफिर का औलाद, तू बता साले थानवी का ओरिजिनल बाप का नाम क्या है? अरे तुम्हारे बाप से तेरे साले कमीन सुअर वलदुज़्ज़िना, ओ वलदुज़्ज़िना, वलदुज़्ज़िना ज़करुल हिमार वलीद इब्न मुगीरा इब्न तैमिया की नापाक औलाद, ओ अशरफ हिजड़े की नाजायज औलाद। बता तेरे थानवी का बाप कौन था ओरिजिनल? नाम बता अपने बाप का साले सुअर। अरे तुमने पूछा कि मौलाना अशरफ, ओ हरामी जिना की पैदावार, तेरे बाप थानवी का ओरिजिनल बाप का नाम क्या बता? उनके वालिद से, अरे उनके वालिद से मतलब क्या है तुम्हारा? अबे साले वो हराम की औलाद है, सुअर गधा हरामी, हराम की औलाद है। जो हरामी होता है, जो तुलीम बादलाने का ज़रीब होता है, वही मेरे नबी की शान में तौहीन करता है। मतलब तो बहुत कुछ है साले, शैतान डॉक्टर, मतलब तो बहुत कुछ है। जो जिना की पैदावार होता है ना, वही मेरे नबी की शान में तौहीन करता है। साले हरामी, तू भी डीएनए टेस्ट कर अपनी माँ से जाके। तू, तेरी माँ जिंदा है कि मर गई? तेरी माँ जिंदा है कि मर गई? तू भी अपना डीएनए टेस्ट कर साले सुअर। तू अपना डीएनए टेस्ट कर जाके डॉक्टर के पास। नहीं हो सकता। अबे हरामी जिना की पैदावार, डॉक्टर से जाके डीएनए टेस्ट करा साले, तू हरामी है, तू भी हरामी है, जाके डीएनए टेस्ट करा साले सुअर। नहीं हो सकता। ओ हराम की पैदावार, जिना की पैदावार, वलदुज़्ज़िना ज़करुल हिमार वलीद इब्न मुगीरा इब्न तैमिया की नापाक औलाद। हरामी बताओ मुसलमानों, इस हरामी की औकात आपने देख ली है। साला ये अपने आप को डॉक्टर बता रहा था, पीएचडी किया हुआ बता रहा था साला सुअर। अच्छा, आके बदतमीजी करने लगा। मैंने इसको बोला था कि दुनिया में किसी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो नूर हसन के सामने आके अपने आप को सही साबित करते, अपनी जमात को सही साबित करते। साले हरामी, तेरे अंदर तो इतनी बड़ी दहशत फैली हुई है कि तूने अपनी जमात को छुपाया, तूने अपनी जमात का नाम नहीं बताया साले सुअर वलदुज़्ज़िना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब हज़रात, नूर हसन रज़वी नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंच सके और देवबंदियों का ओरिजिनल और बदनुमा चेहरा आपके सामने आ जाए। सुन्नी अंबिया इकराम की जिस कमाल को तस्लीम करते हैं, मानते हैं, वहाबी देवबंदी उसी कमाल को शिरक बताते हैं और अपने बुज़ुर्गों के लिए हर कमाल को तस्लीम करते हैं, अंबिया इकराम के कमाल को इनकार करते हैं। देखें इस वीडियो को।